First of all, good morning to all you students. In the last video of class 12 business studies, we discussed new chapter number 7, that is directing. It is a fourth function of management, you know very well, and this function of management performs after the staffing process. You know what is directing? Directing is a process of instructing, guiding, leading, counseling, and motivating people in an organization to achieve predetermined objective. As well as we discussed in the last video, there are basically 4 elements of directing, that is supervision, motivation, leadership, and communication. You know what is supervision? Supervision is a combination of 2 words, that is supervision. Super means over and above, and vision means see. So we can say that supervision means seeing from above. So supervision means monitoring and observing the employees when they are performing their job in an organization and giving instruction to ensure optimum utilization of resources and achievement of target. The second important element of directing, that is motivation, and today we will discuss the second elements of directing, that is motivation. You know very well, it is a very important element of directing because every manager and every kind of employees need motivation. अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो काम करते करते उस काम में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन आ ही जाती है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स को लेकर हो चाहे मॉनेटरी टर्म्स को लेकर हो. तो जो इंटरेस्ट कम हो जाता है, जो डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, वो हम किससे दूर करते हैं? वो हम दूर करते हैं मोटिवेशन की हेल्प से, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से एक एम्प्लॉय से उसके कैपेबिलिटी के से ज़्यादा उससे काम कराया जा सकता है, और उस काम को भी कराया जा सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है. So we can say कि motivation is a very important part of directing. कोई भी डायरेक्टिंग प्रोसेस विदाउट मोटिवेशन पॉसिबल परफॉर्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यू नो वेरी वेल एवरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपरवाइज़र, गाइड फ्रॉम द सुपरवाइज़र, लीडिंग फ्रॉम द लीडर्स, counsel from the supervision, but they needs motivation from the motivator, because without motivation they cannot be perform their job efficiently and effectiveness. So today we will discuss what is the meaning of motivation and what are the interrelated terms related to the motivation, that is motive and motivator, as well as we discussed today the various definition of motivation given by different author, features of motivation, and whole motivation process. So let us start. What is motivation? Motivation refers to the process of stimulating people to action to accomplish the desired goal. जो डिज़ायर्ड गोल है, जो हमने गोल अपने बिजनेस का डिसाइड किया हुआ है, उस गोल को अचीव करने के लिए पर्सन्स को स्टिमुलेट करना, पर्सन को फोर्स करना, और ये फोर्स ऐसा भी ना लगे कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, यानी इंसान चल भी रहा है और हम पीछे से धक्का भी नहीं मार रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन. मोटिवेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टेक्निक्स है जिसके हेल्प से मैनेजर अपने वर्कर्स से इस तरह काम कराता है कि उनको लगता भी नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. यू नो, so today what is the meaning of motivation, concept and definition? The term motivation is derived from the word motive. Motive are expression of a person need, and hence they are personal and internal. In this context, the term need should be associated with the urgency of any pressing desire for something. It simply means something within an individual that promotes him to action
Motives or needs are whys of behaviors. They are start and maintain activity and determine the general direction of the person. Motives gives direction to human behavior because they are directed towards certain goals, which may be conscious or subconscious. Motives are directed towards the achievement of certain goals, which in turn determine the behavior of individuals. This behavior ultimately leads to goal directed activities such as preparing food and a goal activities such as eating food. In other words, unsatisfied need result in tension within an individual and engage him in search of the way to relieve this tension. So what is motivation? Motivation जो word है वो motive टर्म से निकला है. यू नो मोटिव, व्हाट इज मोटिव? मोटिव मतलब एक पर्सन की नीड, यानी पर्सन की नीड मतलब जैसे हम कहते हैं आपका मोटिव क्या है. जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो उनको खिला पिलाने के बाद पूछा जाता है कि आपका यहाँ आने का मोटिव क्या है. सो मेहमान हो चाहे कोई भी वर्कर हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका कोई ना कोई किसी न किसी काम को करने का मोटिव होता है. ये मोटिव उसका पर्सनल भी होता है एज वेल एज इंटरनल भी होता है. सो मोटिवेशन का पहले ही जो वर्ड है वो मतलब है मोटिव से, यानी किसी न किसी स्पेसिफिक गोल से. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म नीड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद अर्जेंसी और एनी प्रेसिंग डिजायर फॉर समथिंग. यानी जो नीड होती है वो कभी किसी अर्जेंसी या किसी प्रेसिंग डिजायर के लिए नहीं होती. जैसे हम कहें कि आपको आपकी जो मोटिवेशन है, जो आपका मोटिव है, जो पर्सनल इंटरनल है, क्या वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है? नहीं. क्या वो अर्जेंसी है? नहीं. यानी कोई भी मोटिवेशन फैक्टर किसी ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता, वो खुद से वॉलंटरी होकर उस चीज़ को फॉलो अप करता है. एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं कि मोटिव्स एक तरह की नीड्स हैं जो इंसान के बिहेवियर को प्रदर्शित करता है, इंसान के बिहेवियर को बताता है. अगर हम बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर की, तो ह्यूमन बिहेवियर में जो भी व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए यानी पर्सन्स अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो काम उनके मोटिव को अचीव करने के लिए होता है. सो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो वो फूड क्यों प्रिपेयर कर रहा है? अगर वो खाना बना रहा है तो उसके पीछे उसकी मोटिव क्या है? क्योंकि वो खाना खाना चाहता है, उसको भूख लगी है. सो मोटिव इज़ कि वो भूखा है इसलिए वो खाना बना रहा है. सो मोटिवेशन का जो बेसिकली टर्म है वो रिलेशन है मोटिव से. जब इंसान को कोई चीज़ की मोटिव होती है तो वो उस मोटिव से मोटिवेट होकर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. सो अगर हम पूरे मोटिवेशन को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो दे आर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द motivation. The first one is motive, second is a motivation, and third one is motivator. The first one is motive. A motive is an inner state or desire which energizes an individual to move or to behave towards achievement of goal. Motive arises out of needs of an individual. When a motive emerges as an individual, it causes restlessness as he wants to fulfill his motive. For example, the need for food causes hunger and induces the people to search for food. Some example of motives are thirst, security, need for comfort and recognition. मोटिव क्या है? जैसा भी मैंने पहले बताया, मोटिव मतलब एक डिज़ायर, इंटरनल ऑब्जेक्टिव जो किसी भी इंडिविजुअल को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है. जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने, इट इज़ योर मोटिव. अब अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप क्या करोगे? दिन रात पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे, सुबह उठोगे और खूब मेहनत करोगे, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की टाइम को कम करोगे. यही है ना अच्छे मार्क्स पाने के लिए, डेडिकेट रहोगे. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मोटिव. यानी मोटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द मोटिवेशन. द सेकेंड
part is motivation. It is a process of inducing people to perform to their best ability to express the goal. देखिए, कोई आपको पता है कि आपका मोटिव है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मैं मान लो 95% अबव लाने हैं. आपको पता है कि उस काम को करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको ये करना है, लेकिन वो आप काम करोगे क्यों? आप 1 महीने 2 महीने करने के बाद फिर आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, या आपके पास कई सारे डिस्ट्रैक्शन आने लगेंगे, आप ही खुद आते होंगे. तो वो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको अपने काम को हर वक्त हाई लेवल ऑफ एनर्जी के साथ परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है. जैसे आपने आज आप सुबह उठे और कहा कि अरे यार अब बहुत हो गया, अब मुझे 12th एग्ज़ाम में 95% लेकर आना है, उससे ज़्यादा लेकर आना है, मुझे टॉप करना है. तो आपके अंदर एक मोटिव आ गया. अब फिर आपने उस मोटिव को अचीव करने के लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते मेहनत की. 2 हफ्ते बाद आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आ गया, IPL आ गया, या फिर आपके सामने आप IPL देखने के चक्कर में, या फिर आपके सामने कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ गया जिसके कारण आप अपने उस जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आप नहीं कर रहे हो. कोई भी रीज़न हो, आपकी फेवरेट सीरियल आ गए, तो अब आपका ध्यान सीरियल पे ज़्यादा लग गया कि सीरियल में क्या हो रहा है, पढ़ाई पे कम हो गया. अब आप उसका मेन एपिसोड भी देखते हो, रिपीट टेलीकास्ट भी देखते हो, बैठ के दिन भर टीवी देख रहे हो, और फिर जब खाली वक्त मिलता है तो आप सोच रहे हो कि अरे यार ये बताओ कि अगले एपिसोड में क्या होगा, उसके साथ ये हुआ. इस तरह की चीज़ें आपको अपने काम में डिस्ट्रैक्शन लाती हैं. या कोई गेम आ गया, दिन भर आप बैठ के गेम खेल रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन आ गया. अब उस मोटिवेशन का काम क्या है? मोटिवेशन का काम ये है कि आप जब अपने मोटिव को अचीव करने के लिए जो काम कर रहे थे उस काम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो मोटिवेशन ही आपको उस पटरी पे वापस लेकर आएगा, आपको वापस वो डायरेक्शन देगा कि ये गलत है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये नहीं करना है, ये करना है. ताकि देखिए, मोटिवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो पीपल को इंड्यूस करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उसको लगातार करता रहे. सिर्फ 1 दिन 2 दिन करने से आप 95% प्लस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि परफेक्शन नीड्स रेगुलरिटी. तो रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो मोटिवेशन आपको किसी काम को करने के लिए रेगुलरिटी लेकर आता है, और साथ ही साथ बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म करने के लिए करता है. सो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोनिमा विच अराइजेस फ्रॉम द फीलिंग ऑफ नीड्स and wants of individual. It causes goal-oriented behavior. Some of the definition to explain the concept of motivation are given. Here is an under. The third one is motivator. अब देखिए क्या होता है, आपको मोटिवेशन, आपको पता है कि 95% आपको अचीव करने हैं. उसके लिए आपने पता किया कि आपको इस बुक से पढ़ना है, इस साइड बुक से पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से कोचिंग लेनी है, ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. आपने एक पूरा प्रोसेस डिसाइड कर लिया. लेकिन तब भी कभी कभी आपको कुछ मोटिवेटर्स होते हैं जो उस काम को करने के लिए आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. सो उनको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव और टेक्निक्स used to motivate the people in an organization. The common motivators used by the manager are increment, bonus, promotion, recognition and respect. तो इनको मोटिवेटर कहते हैं. मोटिव आपका क्या है? मोटिव आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप काम को और बेस्ट एबिलिटी में परफॉर्म करिए, उसके लिए आपके लिए मोटिवेटर का यूज़ किया जाता है. तो अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे आपका मोटिव क्या है? प्रमोशन. एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए प्रमोशन भी एक तरह का मोटिवेटर है. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. मोटिव, देखिए अब देखिए कन्फ्यूज़न आएगा, सर मोटिव और मोटिवेटर तो सेम है. देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के मोटिवेटर होते हैं. उसमें इंक्रीमेंट है, बोनस है, प्रमोशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, रिस्पेक्ट है. अब इन सब में से आप कौन सा मोटिव चूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है आप पे. मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीमेंट भी है, बोनस भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है.
ये 5 मोटिवेटर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज अब मोटिवेटर तो बहुत सारे हैं, आप इन पांचों चीज़ को देख के मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन आपने इसमें से किसी एक मोटिव को चूज़ किया कि मुझे प्रमोशन लेना है। तो अब आपका मोटिव क्या है? सर प्रमोशन। तो मोटिवेटर्स में से ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के मोटिवेटर देती है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, अरे यार आप तो मोटिवेट हो जाओ। अब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ उसमें से चूज़ करते हैं कि कौन सा उनका मोटिव है। वो इंक्रीमेंट के लिए वर्क करेंगे, बोनस के लिए वर्क करेंगे, प्रमोशन के लिए वर्क करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन के लिए करेंगे, रिस्पेक्ट के लिए करेंगे। जैसा उनका मोटिव होगा वैसे ही उनकी परफॉर्मेंस होगी। और साथ ही साथ मोटिवेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो आपको अपनी बेस्ट एबिलिटी में काम करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। सो मोटिवेटर का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव और टेक्निक्स। एंड मोटिव का मतलब होता है टारगेट चूज आउट ऑफ इंसेंटिव और टेक्निक्स, यानी टारगेट, टेक्निक्स और इंसेंटिव में से आप जो भी मोटिव चूज करते हो। ठीक है, जैसे आपने चूज किया मोटिव कि मुझे 95% चाहिए, तो कभी कभी आपके फादर या मदर आपको ऑफर भी करती हैं, अरे यार तुम 95% लेकर आओ, हम तुम्हें स्कूटी दिलाएंगे, हम तुम्हें बाइक दिलाएंगे। इस तरह के मोटिवेटर्स की यूज़ किया जाता है। आपको मोबाइल फ़ोन दिलाया जाएगा, लैपटॉप दिलाया जाएगा। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी कैटेगराइज अंडर द मोटिवेटर्स। ठीक है, अब तो सम सिचुएशन में ऐसा होता है कि मोटिवेटर्स में से हम लोग मोटिव चूज़ करते हैं, और या फिर हम खुद से अपना मोटिव बनाते हैं। मोटिवेटर पे हम मोटिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, और उसको देख के हो सकता है हमारे एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप उस काम को लगातार करते रहिए, उस काम को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो आपको अलग से क्या दिया जाता है? मोटिवेटर भी प्रोवाइड किया जाता है, अलग से इंसेंटिव या अलग से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप उस काम में लगे रहिए। बेस्ट एबिलिटी ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने तक बेस्ट एबिलिटी पे वर्क करिए, फिर उसके बाद काम का जो रेट है, सक्सेसफुल रेट है, वो डिक्लाइन हो जाए। पहले 8 घंटा पढ़ते थे, फिर 6 घंटा हुआ, फिर 4 घंटा हुआ, फिर 2 घंटा हुआ, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी एक एम्प्लॉयज़ को अपने बेस्ट एबिलिटी पे वर्क करते रहना चाहिए लगातार, कॉन्टिन्यूसली। तो उसके लिए बिजनेस में मोटिवेटर्स की यूज़ किए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ मोटिव अपने डिसाइड करता है और उसके थ्रू वो मोटिवेट होता है। सो अब हम लोग बात करते हैं द वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय द वेरियस ऑथर। The definition of motivation. Motivation may be defined as a complex of forces inspiring a people at work to intensify his willingness to use his maximum capabilities for the achievement of certain objective. Okay. According to W.G. Scott, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. And according to Dalton E.M.C. Farland, motivation refers to the way in which argues, derives desire, aspiration, striving, or needs डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी मोटिवेशन एक ऐसा वे है जिसमें इंसान डिज़ायर, एस्पायरेशन, स्ट्राइविंग और नीड से डायरेक्टली क्या होता है? वर्क करता है, कंट्रोल होता है और अपने बिहेवियर को बनाता है। तो इस तरह से हम लोग फाइनली एक इसमें आइडियल डेफिनेशन भी दी हुई है। आप लोग बाकी सारी डेफिनेशन की स्क्रीन को शॉट खींच लीजिए, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इसमें से किसी भी डेफिनेशन में आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। अभी हम लोग मूव करते हैं द आइडियल डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले डेफिनेशन तो आप ये देख लीजिए मोटिवेशन की, सबसे एक 1 लाइन डेफिनेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish द डिज़ायर्ड गोल। और दूसरी डेफिनेशन आपको ये है, the second definition of motivation, that is motivation may be defined as the process of stimulating people to action accomplish desired goal. It involves arousing needs and desire in people to intimate and direct their behavior in the purposive manner. Motivation is psychological phenomena which arises from the feeling of needs and wants of individual. It causes goal directed behavior. यानी कि अगर हम पूरा एनालाइज करें सारा डेफिनेशन, तो मोटिवेशन को हम लोग एक प्रोसेस से डिस्कस करते हैं जिसमें कोई भी पीपल जो होता है इंड्यूस होता है, स्टिमुलेट होता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करे।
और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कई सारी नीड्स एंड डिज़ायर होती हैं जो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को परपेसिव मैनर में, उद्देश्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव मोल्ड कर देती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोनिमा है जो किसी भी इंडिविजुअल की इंटरनल नीड्स एंड वांट्स से ही निकल कर आती हैं। और सिंपली वी कैन से दैट कि इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि मोटिवेशन से ही इंसान जो होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, और वो किसके लिए हो जाता है, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ओके, नाउ we will move to the next topic of this chapter, that is features, characteristics and nature of motivation. So what is on the above analysis of above definition, we find that motivation has the following feature. You know very well कि हमने सारा इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन किया है व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो अगर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, तो गोल को अचीव कराने के लिए उनको प्रॉपर्ली मोटिवेट करते रहना होगा। उनका मोटिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? मोटिव है कि 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करना है, 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गोल ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किए जाते हैं। अब उन सारे गोल को अचीव करने के लिए जितने भी हम लोगों ने गोल बनाए हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेंगे। हो सकता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं सारे लोग उतने ही एबिलिटी से, उतने डेडिकेशन से वर्क नहीं करते। तो उसमें जितने लोग इतनी एबिलिटी से वर्क नहीं करते, उतने डेडिकेशन से वर्क नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन को मूव किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की हेल्प ली जाती है। मोटिवेशन की हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं डेडिकेशन से, बेस्ट एबिलिटी से, उनको मोटिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेटर्स। उनको कई सारे इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं कि काम जो जितना ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा उसको वेजेस मिलेगा। जिसका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा उसके प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। और देखिए मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, मोटिवेशन जो होता है वो नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का जो टर्म है वो ये है कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, सो इट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि काम नहीं करोगे तो आपका डिमोशन हो सकता है, आपको काम से निकाला जा सकता है। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन है, लेकिन एक तरह का नेगेटिव मोटिवेशन जिसे हम लोग वार्निंग कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ किस नेचर का है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह का मोटिवेशन पसंद है। वो पॉजिटिव मोटिवेट होकर काम करना पसंद करता है कि नेगेटिवली मोटिवेट होकर वर्क करने के लिए एबल होता है। ये तो रहा मोटिवेशन के सिचुएशंस, उनके नेचर। आइए हम लोग बात करते हैं उसके फीचर्स पे। सबसे पहला है मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। Motivation is a psychological phenomena which generates from within an individual. Needs are feeling arising in the mind of a person that he lacks certain things. Such feeling affects the behavior of that individual and causes him to do work. Hence, motivation is the process of making an individual feel his needs. यानी अगर हम बात करें तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ये तो बात कहीं नहीं जाती है, क्योंकि इंसान को जो मोटिवेशन आता है, जो वो मोटिवेट होता है वो खुद होकर आता है। हम तो बस सिर्फ मोटिवेटर जनरेट करते हैं, हम तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं कि ये करोगे तो प्रमोशन होगा, ये करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें डिमोशन मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा। हम तो सिर्फ ऑफ़र देते हैं। अब वो अपने अंदर से उसमें से किसको मोटिव बनाता है, किस मोटिव पे वो वर्क करता है और मोटिवेट होता है, ये तो उसकी खुद की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मोटिवेट हो जाओ। जैसे हमारी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, 50 में से 45 स्टूडेंट रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं? हो सकता है वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, वो उनके अंदर खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं है, खुद से किसी काम को करने की डिज़ायर नहीं है। तो जब तक कोई काम खुद से करने के लिए डिज़ायर नहीं होगा, हाँ, वो उस मोटिवेट नहीं हो सकता। इसके लिए मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसे आपने अभी रिसेंटली बहुत ही सक्सेसफुल मूवी देखी आमिर खान की दंगल। तो दंगल में मूवी का एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पर
जो भी रेसलर्स रहते हैं, जो दो उनकी लड़कियां रहती हैं, वो इंटरनली मोटिवेट होती हैं, देयर आफ्टर वो वर्क हार्ड करने लगती हैं। शुरू में आमिर खान बहुत मेहनत करता है कि उनकी दोनों बेटियां काफ़ी मेहनत करें और जल्द से जल्द रेसलिंग में क्या हो जाए, इक्विप हो जाएं, तैयार हो जाएं उसके लिए। लेकिन वो कब तैयार होती हैं? जब वो खुद इंटरनली मोटिवेटेड होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग। हम कितना भी प्रेशराइज करें, हम कितना भी इम्पोजेंट करें, तब तक इंसान नहीं कर सकता किसी भी काम को जब तक कि वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होता है। नंबर सेकंड, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हाँ, आफ्टर मोटिवेटेड, जब हम मोटिवेटेड हो जाते हैं तो यू नो वेरी वेल आपका सारा बिहेवियर आपके गोल को लेकर हो जाता है। इस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। मोटिवेशन इज अ पावर विच लीड्स द एम्प्लॉयज़ टू द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल। द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ क्लियरली शोज दैट they are aligned towards the achievement of their goal. For example, the promotion in the job may be given to employee with the objective of improving performance. In case the employee is interested in promotion, it helps to produce a behavior to improve performance. अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, हमारा कोई मोटिव है, तो वो हमारे बिहेवियर में दिख के आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे प्रमोशन के चांसेस हैं, और खबर आई कि प्रमोशन उसी को मिलेगा जिसका पिछले 1-2 साल का बैकअप बहुत अच्छा होगा। तो अब वो बंदा अपनी प्रेजेंट की जो मेहनत है उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका जो गोल है वो है प्रमोशन। उसके साथ लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर करने लगेगा, ताकि, क्योंकि देखिए पास की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कड़वी ना हो, तो उसे भुलाया जा सकता है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के चांसेस आते हैं प्रमोशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ होता है उसी तरह का बिहेवियर करने लगता है जिस तरह की उसकी नीड होती है। जैसे उसको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए उसे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ से कोऑपरेशन भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करने लगता है। यानी जैसा देश वैसा भेष, वैसे ही कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का, कि मोटिवेशन से ही इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन कोई भी बंदा अपने गोल के अकॉर्डिंग ही काम करने लगता है। अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए जो नीड्स हैं उस पर काम करने लगता है, अगर इंसेंटिव चाहिए तो वो, और रिस्पेक्ट चाहिए तो उस तरह से काम करने लगता है। द थर्ड वन इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवार्ड लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन। नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, थ्रेटनिंग etc, विच ऑल्सो में इंक्लूड इंड्यूस अ पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर वे। यानी अगर हम तीसरा इंपॉर्टेंट बात करें तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होता है, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The next one is motivation is a complex in different process. Motivation is a complex and different function from, because needs are mental feeling which cannot be detailed and measured accurately. ये बहुत बिल्कुल सही है कि मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। क्यों? देखिए पहले कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्सिटी मोटिवेशन की इसलिए क्योंकि हम किसी के मेंटल फीलिंग को फील नहीं कर सकते। जो इंसान मेंटली रूप से फील कर रहा है, जो उसकी मेंटली डिज़ायर्ड है, उसको हम फील नहीं कर सकते। तो ये तय करना कि कोई इंसान किस लेवल से, किस टर्म से मोटिवेट हो जाएगा, ये एक्यूरेट करना, इसको कैलकुलेट करना, ये एक्यूरेटली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेटर प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेट हो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने उनके मोटिवेटर्स के अकॉर्डिंग काम किया हो, उनको प्रॉपरली मोटिवेटर प्रोवाइड किया हो। नहीं कर पाएंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कोई एम्प्लॉय है जिसको रिस्पेक्ट की काफ़ी ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ में, हम फील नहीं कर पा रहे, हम पता नहीं कर पा रहे कि एम्प्लॉयज़ अपने काम को उतने अच्छे ढंग से क्यों नहीं कर पा रहा है। हम पता, एक्चुअल रीज़न क्या है उसको, he wants need, he needs respect, he wants respect, कि उसे अपने सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर से रिस्पेक्ट मिले। हम उसको बोनस पे बोनस दिए जा रहे हैं, इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन हम जो प्रोवाइड करें, हम तो सोच रहे हैं कि हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बोनस दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट।
क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पे वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सही ढंग से उसको मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है। ये तो वही बात है कि इंसान को सर दर्द हो रहा है, हम उसको पेट दर्द की दवा दे रहे हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Human needs are unlimited and go on changing continuously. Satisfaction of one need give rise to another. So manager have to continuously perform the function of motivation. एकदम बिल्कुल बात सही है कि मोटिवेशन एक डायनेमिक है. हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. सो अगर हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. जैसे मैं शुरू में ही कह रहा था कि मोटिवेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये लगातार चलता रहता है. इट कैन नॉट बी स्टॉप्स. अगर हम मोटिवेशन स्टॉप कर देंगे तो आई होप कि कोई इंसान 1 महीने 2 महीने तक वर्क करेगा प्रॉपरली, फिर उसके बाद फिर उसी पुराने रास्ते में आ जाएगा जिस रास्ते में वो शुरू में चला था. जैसे मैंने स्टडी की एग्जांपल लिया बच्चों के कि वो पढ़ते हैं, एक बार उनको सपना आ जाता है कि उनको 95% प्लस चाहिए, 1 महीने 2 महीने वर्क करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने उद्देश्य से, अपने ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से. तो उनको प्रॉपरली हर टाइम मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए. वैसे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी तो एक तरह के ह्यूमन ही बीइंग हैं, उनको भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है उनको सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा हो वर्क कल्चर से, तो उनको कुछ और चाहिए, नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए. तो वो अलग नया कौन देगा? ऑर्गेनाइजेशन ही तो देगा. तो इस तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मोटिवेशन, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स नीड्स रेगुलरिटी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ डायनेमिक प्रोसेस. सो आज हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है व्हाट इज़ मोटिवेशन, डिफरेंट डेफिनेशन गिवन बाय द different author, as well as we discuss the features of motivation and the 3 important terms of this topic, that is motivation, motive and motivators. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.